drink, yeah, which can be drunk, is called. Can anybody answer? ऐसी चीज जिसको पिया जा सके. Do you know it? चलिए, no problem. Are you listening to me? ये क्या हो गया? Your mic. हाँ, हम ये कह रहे थे कि Yes, sir. आवाज क्लियर आ रही है ना. Yes, sir. हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि द थिंग विच कैन बी ड्रंक इज कॉल्ड. जिसको पिया जा सके, पीने वाली Yes. चीज, इसको क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहा जाता है पेय पदार्थ. चलिए बताइए, द थिंग विच कैन बी ईटन. Beverage. द थिंग विच कैन बी ईटन. It calls sir. I Eaten. will give you. I have a number of the thing which can be eaten, जिसको खाया जा सके. तो खाया जा फूड फूड नहीं होगा. फूड चलिए, सर चलिए ऐसी ऐसी चीज जिसको देखा जा सके. ठीक Usable. मैं सोच रहा था कि आप लोगों का वोकैब्स को थोड़ा सा इंक्रीज करूं, और इंशाल्लाह होगा भी ये. और चलिए, कोई बात नहीं. Inshallah. और ऐसी चीज जिसको सुना जा सके, उसको क्या कहेंगे? Hearable. हाँ, सही बोले. क्या बोले? Hearable. हियरेबल. लेकिन उसके लिए एक और वर्ड. चलिए, मैं तुरंत आपको वर्ड दे रहा हूँ. घबराना और परेशान नहीं होना है. यू शुडंट बी. ये स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? There is nothing to worry about. नो सर No, sir. नो सर नथिंग. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, होना चाहिए था. नो प्रॉब्लम, होगा, अब होगा. ओह, वो हमको कह रहा है हो रहा है स्क्रीन. सर. सब हो रहा है. हो रहा है. हाँ. यस सर अब देखिए तो क्या है लिखा हो. इसको पढ़िए तो. जो किया जा सकता हो डुएबल जो और देखा इसमें जा तो एक सकता वन मिनट, विजिबल 1 मिनट, 1 मिनट. इसमें तो कृति को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. असल ये तर फॉन्ट उर्दू का है. तो ऐसी चीज जिसको किया जा सकता हो उसको कहा जाता है डूएबल, और जिसको देखा जा सके Visible. विजिबल विजिबल, और जिसको सुना जा सके Audible. ऑडिएबल ऑडिबल. डीएबल कैसे ऑडिबल होगा. Audible. और जिसको Audible. खाया जा, ऑडिबल और जिसको एडिबल एडिबल है वो. और जिसको पिया जा, एडिबल पोटेबल पोर्टेबल. और जिसको छुआ जा सके टेंजिबल टेंजिबल. तो डूएबल, विजिबल, ऑडिबल, एडिबल, पोर्टेबल, टेंजिबल. Tangible. टेंजिबल Tangible, tangible, Tangible. tangible tangible. So tangible what do you think? The air is tangible or non-tangible? The air can be touched. Huh? No. no Non-tangible. sir Not. I It can't touch cannot be known. no We can any only feel. No one What can did you touch air. say? What did you say? We can only feel the air. No Yeah, one can yeah, touch yeah, air. yeah, yeah. So that's yes why sir only feel yes sir that is not tangible. Tangible
And Tangible. what about dew? Can we touch dew? We can touch dew. No. We can Yeah, touch dew. due. Dew we can touch, so it's a tangible. Yes, it's tangible. Tangible. Audible. Can we hear Can the walking sound of an ant? The walking sound of an and ant could be heard. Is it audible or is No, no, it it's not audible. audible, audible. it's It's non-audible? Yeah. sounds of It's ant. not audible. उसे Yes. सुन भी नहीं सकते हैं सर. We Yes. हाँ. can't hear. Visible Yes means sir. the thing which can be seen. Visible. Visible. Can we Uh, see? can we see amoeba? Can we see paramecium with No our sir. naked eye? Only one question, sir. Huh? Sir, बोलिए. visible and visibility both are same. Visibility. I see with microscope. सर उसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. Yes, yes, I got it. चलिए एक क्वेश्चन ये पूछे. Visible, visibility. Visibility, it relates to medical line, just like the power of your eyes. How eyes you're strong and what is your visibility. Or sometimes we could also say that if I drive, so our visibility is from this place to that place. But visible, Okay, okay. Got it, got it. hmm, I think you have got it. चलिए doable, visible, audible, edible, portable, tangible. Yes sir. Ali, can you read all those words? Doable, visible, audible, edible, portable, tangible. Doable, visible, audible, edible, portable, tangible. Tangible. Yes. So if I Tangible. if I say to you, if I give you Yes, sir. maza, Hmm? maza, it's a liquid. It is drunk. So Yeah, what will you call it? You have to choose one word for maza. Maza is yeah, I Mother's know. Cold drink. maza is. cold drinks. Sir. अरे कोल्ड Portable. ड्रिंक तो इसमें से It कौन सा is वर्ड होगा? माजा इज फिल इन द ब्लैंक्स. portable. Portable, yes. Portable. Maza is Yes. Mhm. portable. And Portable. lassi is Is portable. Portable. Whatever. It, portable. Okay. And fish is Edible. 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 And okay. खाया जाता है ना, इसे पिया जाता है. चलिए तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. इसको आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसको देख लीजिएगा आप लोग. ठीक है. It is really very Okay, sir. nice word. Doable, visible, audible, edible, portable, tangible. 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 Don't mind this. If you don't mind me इसमें एक saying, सेंटेंस so है. okay. 1 मिनट. एक सेंटेंस इसमें लिखना है. सिर्फ आप लोग अगर कॉपी है तो लिख लीजिए. इफ यू डोंट माइंड Perhaps. मी सेइंग सो. बस इतना ही लेना है. ये बाय सेइंग नहीं. ये बीच का सिर्फ लेना है. इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. इसको आप लोग बोलिए तो. इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. If इफ you यू don't mind me saying so. if you don't mind me saying so. If you Saying don't. so. चलिए और लोग भी बोलिए. इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. If you don't mind me saying so. या इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. सब लोग तीन You तीन बार don't बोलिए. फिर mind इससे me saying सेंटेंस so. बनाएंगे. इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो. इफ यू डोंट माइंड मी If you You सेइंग. don't don't mind mind me saying so. If you don't 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 mind me saying so. Then
If you You don't don't mind mind me saying so. me If you saying so. don't If mind you me don't saying mind so. me saying so. If saying you so. don't mind me saying so. If you don't mind me You saying don't so. mind me saying so. If you don't mind me saying so. अब ये सेंटेंस कहाँ यूज होगा? बड़ा अच्छा ये सेंटेंस है, और सेंटेंस केवल के एक क्लाउज की तरह है। इसमें जब एक और सेंटेंस एक और क्लाउज लगेगा तो ये पूरी बात हो जाएगी। तो इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, क्या मीनिंग हो सकता है? व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कृति श्रीवास्तव, आर यू अवेलेबल हियर? इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, Yes, sir. व्हाट डज इट मीन? If you don't mind me saying so, if you don't mind me saying so, could I know your salary? If I don't mind, if you don't mind saying so, could I Sir. know your age? H. Yes, sir. हम्म, अगर क्या आप बुरा ना मैं माने आप तो बुरा क्या न है? माने तो मैं आपकी yes. सैलरी या ये जान सकती हूँ? आपको बुरा ना लगे, अगर आप बुरा ना माने, अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं आपकी सैलरी, ये अच्छा है। इसमें बहुत सारा इफ आई इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, कुड आई नो वेदर यू आर Salary. मैरिड और अनमैरिड? ठीक है, तो ये भी हम लगा सकते हैं कि इफ You यू don't डोंट mind माइंड me मी saying सेइंग सो, कुड आई नो वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड? so. सर Unmarried. ऐसे भी सेंटेंस होता था Married. ना, इफ यू हाँ, डोंट माइंड मे आई नो, इफ यू डोंट माइंड मे आई नो यू आर मैरिड और अनमैरिड। इफ क्या बोल, इफ Married या इफ married. यू डोंट इफ माइंड यू मी डोंट सेइंग माइंड सो, मे, नहीं नहीं, हम ऐसे उस भी तरह होता था से ना। देखिए, अभी एक बात बता रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर जो है ओके। ना जब चेंज होने लगेगा तो फिर जो है हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो थोड़ा गड़बड़ाएगा। हमको सिर्फ इसी बिल्कुल पूरा साहब. ही लेके चलना है, ठीक है? If you मतलब don't मेरे, mind me saying so, could I हाँ know your salary? हाँ, तो इफ आई इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग If सो, you don't mind me Saying saying so. चलिए इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाइए आप लोग। so. इफ यू Sir, डोंट, I want to ask a बोलिए। question. हाँ आस्क। सर ये मैरिड होता है या मैरिड होता है? मैरिड तो प्रोनाउंसिएशन सर. बिल्कुल नहीं होगा, मैरिड ही होगा, मैरिड ही होगा। मैरिड. या मैरिड, Yes, sir. मैरिड I अनमैरिड। want to confirm also. नो, इट्स confirmed that it's a married, not married. 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 Married life. Yeah, married and unmarried. Lots of people say married life. It's wrong. Married, no, it's a quite wrong. It's quite wrong. It's a quite Married life. married life. Okay. Married. So Married. married life is a happy life. Yes. अब देखिए उधर हम चलेंगे बाद में, थोड़ा पहले हम इस पे प्रैक्टिस अभी करा लें आप लोगों से कि Yes, इफ यू sir. डोंट माइंड मी सेइंग सो, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, सो कैन समबडी मेक सम सेंटेंसेस? सब लोग दो दो सेंटेंस बनाइए। चलिए, कृति श्रीवास्तव शुरू कीजिए। इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो। फिर शायक हैं वो, मरगूब हैं, सब लोग भी बनाइए इसको, दो दो सेंटेंस सब लोग दीजिए हमको। इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो। If you, sir, I want to speak. Uh, if you don't mind me saying so, could I know your address? वेरी गुड, वेरी Yeah. गुड। हम्म, Yeah. If if you don't mind me saying so, could I know your या job वेरी गुड। status? जॉब स्टेटस। Job status. एक और सेंटेंस जो अभी हम आपको दे रहे थे वो सेंटेंस भी अच्छा है, इसको आप अभी याद कर सकते हैं कि इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, कुड आई नो whether you are married or unmarried, whether you are employed or unemployed, whether you Yes. are you live in urban area or rural area। तो वेदर लगा के कुड आई नो वेदर, कुड आई नो वेदर, फिर आपको वेदर और का यूज होता है स्ट्रक्चर। Whether
whether whether or. married or unmarried. Yeah. Could I know Whether, whether you are married or unmarried? Whether or structure है, ठीक है. whether or, yes, whether married or unmarried. Unmarried. सर Now वेदर का Margul स्पेलिंग sir, बता दीजिएगा तो. सर वेदर का स्पेलिंग. वेदर का स्पेलिंग WHEETHER yes और sir, एक है ओके सर. वेदर WEATHER, तो उसका मतलब whether, मौसम होता है, और ये वेदर का मौसम, मतलब yes sir, होता है या तो. ठीक है. या तो. याद. चलिए ठीक है. चलिए Now और. Margul sir turn. तो हम्म. Now it is turn to Margul sir. हाँ, इट्स मरगूब's turn. मरगूब, आर यू रेडी? Margul's turn. Yeah. If you don't mind me saying so, whether Yes, you are married or not married. If you don't yes, mind Good me very idea. saying good. so, हम्म. whether you are employed or unemployed. हाँ, Right, कुड आई very नो good. अगर लगा दीजिए बीच में, क्योंकि हम तो Good. क्वेश्चन मेरे कुड आई अच्छा, नो. कुड आई नो, क्या मैं okay. जान सकता हूँ? कुड आई नो, कुड आई नो, कुड आई नो, कुड आई नो. अच्छा, could I know whether? Okay. If you don't mind me saying so, could I know whether you are living in Purnia or any other district? Yes, वेरी गुड, वेरी गुड. very good. चलिए नेक्स्ट. Excellent. और एक चीज और जान लीजिए, इसमें एक और रूल भी हम बता दिए कि जैसे कुड आई नो हम पूछ रहे हैं, फिर हम किसी से पूछ रहे हैं कि कुड आई नो डू यू लाइक टी और नॉट, तो ये गलत हो जाएगा. जैसे एक क्वेश्चन आ गया कुड आई नो, तो अब वहां पे दूसरा सेंटेंस को हमको असर्टिव में ही बनाना होगा. तो इस तरह से बनेगा कि कुड आई नो वेदर यू लाइक टी और नॉट. ये नहीं कि डू यू लाइक टी और नॉट, गलत हो जाएगा. वेदर यू लाइक टी, वेदर यू Weather. लाइक टी और नॉट. वेदर यू Right. लाइक टी और नॉट. यस सर. वेदर यू लिव इन पूर्णिया और नॉट. ठीक है, तो इसको वहां पे आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है. एक इतना जान लीजिए कि कभी भी दो सेंटेंस जो है क्वेश्चन वाला, कभी भी जैसे एक सेंटेंस हम पूछते हैं, चलो एक बार तुम्हें ये क्या मरगूब नाम है ना? Yes, sir. हाँ, आपसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? कैसे पूछिएगा इंग्लिश? क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? कैसे पूछिएगा? Do you know where is the post office? हाँ, डू यू नो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस. और शायद क्या बोलेंगे इस सेंटेंस के बारे में? Yeah. Yes, sir. Do you know where is the post office? It is चलिए correct ठीक ठीक sentence. ठीक ठीक, अब चुप रहिए, बोलिए मत, उतना बोल दिए, अब चुप रहिए. चलिए अली, तुम बोलो तो क्या बोलोगे इसको, इस सेंटेंस को? क्या आपको पता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है? जल्दी बोलो भाई, बहुत आसान सेंटेंस है. Yes, sir. Do you know where is post office? वेयर. Where is post office? ठीक है. चलिए, तो आप तीनों बोल दिए. अब कृति श्रीवास्तव, आप बोलिए तो, क्या आपको पता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है? Do you know where the post office is? जी, ये पढ़ाया गया है पहले जी. तो समझ लीजिए कि पहला जब आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो दूसरे सेंटेंस को सीधा कर दीजिए. ठीक है, जैसा आप एक्ट ये पढ़ाए होंगे, अगर आप नरेशन, तो नरेशन में ये चलता है. अगर याद होगा, आप लोग कभी पढ़ाए होंगे नरेशन में, है ना? तो नरेशन में वही हो जाता है. ठीक है, तो ठीक इसी तरह जो है, जैसे नरेशन में पूछेगा कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो उसका आ जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. इस तरह हो जाता है. तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा कि डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज. क्या आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है? डू यू नो व्हाट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज. ठीक है, तो ये सेंटेंस, अब आप कहिएगा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दो क्वेश्चन सेंटेंस कभी एक साथ जमा हो ही नहीं सकते. एक सेंटेंस ही ना है, दोनों तो एक ही सेंटेंस है, दोनों क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो पहला वाले को क्वेश्चन में रखेंगे, दूसरा वाले को असर्टिव में रखेंगे, मीनिंग वही देगा, मीनिंग वही होगा, मीनिंग में कहीं से चेंजिंग नहीं आई. लेकिन दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं जुड़ सकते. समझे? इसी रूल पे हमने जो है इसको किया है. समझ में आ गया? Yes, Have you sir. got? यस सर. यस सर. Yes, sir. चलिए
तो हम लोग अभी डू यू माइंड, हाँ चलो कृति तुम भी कुछ सेंटेंस बना दो, इफ यू डोंट माइंड मी। क्या हुआ, काहे खामोशी हो गई? खामोशी क्यों छा गई? इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, चलो तुम बनाओ तो अली। हम्म If you सर don't आपका mind स्क्रीन me थोड़ा छोटा saying है। so, हम्म what are you doing right now? चलिए If you don't mind me saying so, where are you? ठीक, आप उससे क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछ दिए। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, अंग्रेजी सीखना मेरे लिए बहुत आसान है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अंग्रेजी सीखना मेरे लिए बहुत आसान है। Sir, हम्म इंग्लिश लर्निंग इज वेरी इजी फॉर should मी। I? हाँ, May इंग्लिश लर्निंग इज वेरी इजी फॉर मी। हाँ, और कौन बोल रहे, क्या? learn, sir, हाँ learning बोलिए। English is very easy for me. और कुछ? और कुछ दूसरा रास्ता? To लर्निंग learn इंग्लिश या टू English लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी is फॉर मी, very easy for इट्स me. वेरी इजी कॉमन। फॉर मी। हाँ, थोड़ा रास्ता बदल के। कृति श्रीवास्तव, कैन यू मेक अ ट्राई? Sir, या चार English is रफल? very easy for me to learn. Learning English. ओके, सो लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस Very ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, आपका piece of सेंटेंस गलत नहीं था, योर सेंटेंस वाज नॉट रॉन्ग, योर सेंटेंस वाज करेक्ट, बट वी हैव अनदर वे आल्सो टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, दिस थिंग इन अनदर वे। तो इस तरह से हम कह सकते अ पीस ऑफ केक। हम लोग तो बोलते yes. हैं ये तो हलवा है मेरे लिए, अरे ये तो काम बहुत हलवा है, बहुत आसान। तो यस इट्स सर। अ पीस ऑफ केक। तो Cake for लर्निंग me. इंग्लिश इज इट्स अ अ, पीस ऑफ केक, वेरी इजी। या टू लर्न इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। Cake for केक, me. लर्निंग इंग्लिश अ पीस ऑफ केक। Learning For English me. is a piece of cake. Learning लर्निंग English is a piece of cake. So अब पीस ऑफ केक। हाँ, महबूब आप भी All बोल दीजिए इसी सेंटेंस को, लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके सर, लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक पीस फॉर ऑफ मी, बट इट्स uh, नॉट। It's sir, We not, know there is no very any much. reality in this sentence, no problem. Yes, sir. Okay, may I speak? the, हाँ say. Playing cricket is No, no, a piece of cake for me. I don't want you to change the sentence. Say the same Oh no. sentences. I will give you the Learn. sentence. You have to tell, everyone will have to say three sentences. What is the piece of Okay. cake for you? You will make, but later on, not right now. You just Okay. repeat the sentence. Learning English is a piece Learning of. Hmm. learning English is a piece of cake for me. Very good. चलिए, बहुत अच्छा कृति। Yes, sir, I can't listen. Just repeat. Learning English is a piece of cake for me. Learning English. Is a Hello. piece of cake for me. क्या कर रही है, टाइम Learning, बर्बाद? हाँ, sir, learning English is a केक, अरे piece बर्थडे of का cake केक। to me. चलिए अली, repeat the sentences. Yes, sir. Repeat the sentence. Learning English is a piece of cake for me. Learning English uh, Is a piece of cake for me. is a piece cake for me.
ओके। ये कौन बच रहा है? शाह जफर, आप पढ़िए तो। मुझको दिख भी नहीं रहा है ना, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ Learning English is a piece of cake for me. चलिए। अब जो है, अब साइक, साइक तो चलिए आप बाद में बोलिएगा। मरगूब, अब सब लोग जो है दो दो सेंटेंस बनाइए जो आपके लिए पीस ऑफ केक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टू राइड अ बाइक इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, टू राइड अ बाइक ऑन हाईवे इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, टू to shoot a video is a piece of cake for me. To upload a video on YouTube is a piece of cake for me. To cook biryani is a piece of cake for me. So, what is a piece of cake for you, Mr. Margoob? Tell two sentences that are piece of cake for you. Maybe to teach in a class is a piece of cake for you. To teach your particular subject. Teach Urdu Also, I to my teach a student class. is a piece of cake for me. Okay. Uh, और क्या है आपके लिए पीस ऑफ केक? doing my own work is a piece of cake for me. हैं? Doing my own work himself is a piece of cake for me. चलिए, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए साइमा, आप ही बोलिए दो सेंटेंस जो आपके लिए है पीस ऑफ केक। Sir, listen English. Listen music is a piece of cake for me. उसमें कौन मेहनत है? चलिए दूसरा बताइए। Sir, teaching uh, teaching in school is a piece of cake for me. ओके ओके। कृति Not श्रीवास्तव, इट शोज योर स्किल। कृति श्रीवास्तव, टेल टू थिंग्स। I I complete any task to task is piece of cake to me. To complete your task is a piece of cake for you. Yes. Okay, next. नेक्स्ट। दूसरा सेंटेंस बोलो ना जल्दी से। Teaching is a piece of cake to me. फॉर यू, अरे टू मी क्या है? जब मैं Yes. फोर लगा रहा हूँ तो फोर लगाइए ना। टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, रियली? Yes. चलिए, कम से कम। चलिए साइक, टेल, Yes, sir. हाँ, टेल मी समथिंग इन विच यू आर Yes. स्किल्ड, यू आर एक्सपर्ट, Yeah. दैट थिंग्स आर। Writing fiction. Yes, sir. हाँ हाँ, राइटिंग Right. फिक्शन इज अ। Writing fiction is a piece of cake for me. Okay, great. It means you are a Yeah. writer. You are gonna Yeah, be a I'm writer. also. Yeah, I'm also a writer. Great. In which language do you Uh, write generally? Generally, English and Urdu, Okay, great. both Good. languages. Good job. Good Yes, job. yes, sir. Uh, Next is mm, cooking biryani is a piece of cake for me. Okay. If you say to me this thing, I will go to your Yeah, house to eat yeah, because I love yes, biryani a lot. Biryani is my yes, sir. favorite. So Sure, you must come. don't make my mouth watery to Yes, name sir. the name of biryani. If you name the name Yeah. of biryani, so my mouth becomes watery. What? Yeah. My favorite food is biryani. Oh, great. I am fond of biryani. You are fond of biryani. Great. Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा, Great बहुत brother. अच्छा। You have made a few sentences. चलिए, और Yes. कौन बच गया? इबरत है ना क्लास में? क्या इबरत, आज कंफर्टेबल हो, बोल सकती हो? नहीं है सर। साइकिल फाउंड मतलब क्या होता है पता है तुमको? क्या?
वो सर फाउंड का पूछ रहे थे कि फाउंड मतलब क्या होता है। पाना। पाना, हाँ। अरे पाना काहे होता है, वो फॉन्ड ऑफ पाया बोल रहे हैं। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन। उन्होंने कहा Yes, ये sir. फॉन्ड ऑफ बिरयानी, मतलब ये हुआ कि मैं बिरयानी का दीवाना हूँ, मैं बिरयानी का Yes, शौकीन sir. हूँ। सर अच्छा। सर एफ इन्होंने ओ पूछा फाउंड। आप Found फाउंड। it. फाउंड बोले थे, फाउंड FOUND फाउंड। अरे सुनो तो पहले, जब बात फॉन्ड पे चल रही है तो फाउंड वर्ड अपने आप कैसे चलाया यहाँ पे? अभी वो जो सेंटेंस बोला सर हो सकता है उसके दिमाग में आ गया हो ना। आगे अलग बात है, लेकिन जिस बात का, जिस वर्ड का डिस्कशन हो रहा है, अगर उस वर्ड का आपको पता नहीं है स्पेलिंग, तो पहले तो वो वर्ड आना चाहिए। ऐसे तो फाउंड मतलब होता है, फाइंड का तीसरा फॉर्म है फाउंड, पाया जाता है। जैसे यस मान सर, लीजिए फाइंड कि फाउंड। फाइंड फाउंड फाउंड होता, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो सर हाँ, शाद जफर मेक सम सेंटेंसेस एंड देन अली विल आल्सो मेक सेंटेंसेस। व्हाट आर द पीस ऑफ केक फॉर यू? आज पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक A piece of. आपके लिए कौन सा काम कर रहा Driving, है? driving a car is a piece of cake for me. Really? Driving a car is a piece of Yes, cake for you. You drive a car? yes. चलिए, बहुत अच्छा। और टू रिसाइट द होली कुरान, टू लीड द सलात, नमाज पढ़ाना हमारे लिए हलवा है। टू लीड द सलात इज अ पीस ऑफ केक Lead the फॉर, Tarawih. टू लीड द Lead the तरावी Tarawih और is केक। a piece of cake for me. ग्रेट। चलिए, कम से कम एक चीज तो। चलिए, कौन है अली? हम्म, आप बताइए, आपका कौन सा सेक्टर है, किसमें आप हैं? जैसे कह सकते हैं कि टू हिट सक्सेस, टू हिट मैनी सक्सेस इज अ पीस ऑफ केक फॉर रोहित शर्मा। चलिए, बोलिए बोलिए अली, Yes, जल्दी। sir. हाँ बोलिए, क्या चीज आपके लिए बहुत आसान है? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इजी फॉर यू? इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। Reading, drawing, easy cake for me. क्या 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 बोले, फिर से बोलिए, टेल इट अगेन। Reading, drawings. रीडिंग ड्राइंग्स, Yes, ड्राइंग, it is ड्रॉ technical drawings. okay, okay, okay. Reading drawings is a, Is it's piece cake for me. a piece of cake, piece of cake for me। हाँ, Yes, sir. और क्या है पीस ऑफ केक आपके लिए? All projects are completed. Piece of cake for me. क्या क्या बोले, फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। आई couldn't hear you, you are not quite audible, that's why I couldn't hear you. Tell it again, no problem, repeat the sentence। Project are completed. Piece of cake for me. Completing project is a piece of cake for me। Completing Yes, sir. a project is a piece of cake, हाँ, for me। चलिए, तो देखिए, बहुत अच्छा है। आप अगर अपना, आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कल के लिए, आप अपने बारे में 5 सेंटेंस जो आपके लिए पीस ऑफ केक है, 5 क्या बल्कि 10 भी हो सकता है। जैसे हमारे लिए जो है, टू वॉश क्लोथ इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स अ बर्डन फॉर मी, इट्स अ बिग बर्डन फॉर मी। ठीक है, तो My जैसे, difficult job is हाँ, mosquito net is कैसे बोलेंगे सर, मच्छरदानी लगाना। टू फिक्स द मॉस्किटो नेट। Mosquito net हाँ, is a very hard for me. yes, it's a burden for you to set Yeah, the, it's a yeah, to burden for fix me. the mosquito Uh, net is a big burden for me, very difficult job for me. very difficult for me। होता है, Yes, होता है, मच्छर काट ले लेकिन मच्छरदानी नहीं लगाना। मच्छरदानी नहीं लगाएंगे।
It means you are, this time you become lethargic, you become lazy, extremely lazy, you become sarkar. Yeah, yeah. Once you hear the Very, name of mosquito net, so you become sharkar, you become lethargic, you become indolent, you become lazy. तो देयर आर lazy. फ्यू Yes. वर्ड्स, अभी चलिए अभी अब दे देंगे, ये वर्ड को याद करा दीजिएगा तो दे देंगे। चलिए देखिए, एक वर्ड Okay. यहाँ पे नीचे लिखा है स्क्रीनशॉट में, अगर आप लीजिएगा देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि इजी पीजी। ठीक है, इसको भी याद कर लिएगा। हालांकि हमने तो बुक बुक में नहीं यूज देखा, लेकिन स्पोकन में देख रहा हूँ, और वो भी कोई एक्सपर्ट हैं वो इनको यूज कर रही हैं। तो आपके दिमाग में ऐसे, अब पीस ऑफ केक ज्यादा यूज होता है, इसको ज्यादा कीजिए, लेकिन एक दिमाग में रहे कि इजी पीजी भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि टू स्पीक इंग्लिश इज इजी पीजी फॉर मी। टू स्पीक इंग्लिश इज इजी पीजी, इजी पीजी। ठीक है, ये इजी Easy. पीजी भी वही हुआ जो है बहुत आसान, इजी पीजी या फिर ये। चलिए एक बात बताइए, क्लास बहुत अच्छी थी, कल जो क्लास हम लिए थे उसको आपको बोलना है तो कैसे बोलिएगा कि क्लास बहुत अच्छी थी? Class is very nice. Class was very nice. चलिए और लोग बताइए, क्लास बहुत अच्छी थी। इतने सारे हैं, अगर दो दो वर्ड भी देंगे, एक एक वर्ड भी देंगे, कितना वर्ड हो जाएगा? कृति हैं, अली हैं, मरहूब, बोलिए बोलिए। द क्लास The वाज, Sir, class the was class awesome. was very good. The ये सब class was तो, awesome. ये सब तो Class हाँ, was very excellent. Sir, the class वेरी, was very good. देखिए Excellent. द क्लास वाज, एक बच्चा तो कुछ भी बोला हो द सकता क्लास है। वाज ऑसम, Awesome. एक बच्चा Awesome. बोला है ऑसम, लेकिन एक बच्चा बोला है वेरी एक्सेलेंट। Yes. ठीक है, वेरी एक्सेलेंट, ये वर्ड सर एक्सीलेंट के साथ वेरी नहीं लगता है। काहे नहीं लगेगा? लगा दिया बच्चा तो क्या गलत लगाया? देखिए वेरी एक्सेलेंट बोला है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? ये सेंटेंस सही है गलत है? सर बहुत अच्छे, सेंटेंस तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा बोला है। अली आसिम हैज आई रेज्ड एम हैंड। रेज। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? अली आसिम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं लग रहा है। I agree with you, sir. क्या दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? Yeah, right, sir. राइट। नो सर, आई एम नॉट सर। Oh, you don't agree. It means यस सर, आई एम you नॉट think that this एग्री। sentence is wrong. चलिए देखिए, यस। ये जान लीजिए ऐसा ही है जैसे कोई आदमी जलेबी खा रहा हो और ऊपर से चीनी उस पे डाल रहा हो, चीनी लगा के जलेबी खा रहा हो। ठीक है, तो मीन्स ये हुआ कि कभी भी एक्सट्रीम एडजेक्टिव कुछ वर्ड्स हैं उसके साथ वेरी नहीं लगाना। वेरी के अलावा आप दूसरा वर्ड लगा सकते हैं, जैसे आप अमेजिंगली लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, अब्सोल्युटली लगा सकते हैं, लेकिन वेरी नहीं लगाना। ऑसम लगा सकते हैं। फिर उल्टा पुल्टा हम कुछ रूल बताते हैं, तुम कुछ और रूल बताने लगते। हमारे सॉरी रास्ते सर। को बहकाइए नहीं, हम क्या बोल रहे हैं जो समझने वाले समझ रहे हैं। हमने कहा कि दूसरे एडवर्ब को हम लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ही इज एक्सट्रीमली वंडरफुल, ये चल जाएगा। ठीक है, अब्सोल्युटली वंडरफुल चल, अब्सोल्युटली एक्सेलेंट भी चल जाएगा, लेकिन वेरी एक्सेलेंट नहीं चलेगा। तो अब्सोल्युटली या फिर एक्सट्रीमली, ये सब वर्ड लग सकता है एक्सट्रीम एडजेक्टिव Yes. के साथ, लेकिन वेरी नहीं लगेगा। तो वेरी एक्सेलेंट कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। बोलने के रॉ Yes. में अच्छे अच्छे लोग ऐसा बोल देते हैं, हमने सुना है वेरी एक्सेलेंट, क्योंकि उसको लगता है एक्सेलेंट भी कम पड़ रहा है इस आदमी पे। तो एक्सेलेंट में सब कुछ Noted, मिला sir. हो। Noted. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वंस वी टॉक, वंस वी से दिस, वंस वी यूज दिस वर्ड। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। चलिए कुछ वर्ड्स अभी दे दें, एक आध वर्ड दे दें आपको, उस टाइम भूल जाएंगे तो दे भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन याद रखिएगा अभी किस पे हम लोग टॉपिक पे बहस कर रहे थे। देखिए एक वर्ड है इंडलेंट, इसका मतलब पता है आप लोगों को? इंडलेंट, नो सर। पुराने कोई भी हम्म आलसी। आलसी. जी, इंडलेंट मीन्स भी वही होता है, और शर्कर मीन्स भी, शर्कर मीन्स कामचोर होता है, इंडलेंट मीन्स सुस्त, आलसी।
ठीक है। और इसी के लिए वर्ड आता है लेथार्जिक भी, ये लेथार्जिक भी वही, इंडोलेंट, lethargic. शर्कर, लेथार्जिक एज वेल एज, ये तो सब लोग जानते हैं इसको, इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। Lazy, lethargic. तो Lazy. इंडोलेंट, शर्कर, लेथार्जिक एंड लेजी, ऑल Indolent. indolent, indolent, Indolent. 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 Shirker, lethargic, lazy. I'm not lazy. Lethargic. आप लोग खोजिएगा इसमें से कौन कौन क्वालिटी आप लोगों के अंदर है, ठीक है। Lethargic. सर वो जो कल वीडियो आप भेजे थे तो उसको आप बोले थे लिख के लाने के लिए, वो लिखे हैं हम लोग। लिखे हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। अभी थोड़ा सा हमारा अभी कुछ बचा हुआ है, उसको हम खत्म कर लें। तो देखिए अभी एक बच्चा और ये हाँ सर, क्लास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट पर भी दिए थे। वन मिनट, हमको याद है, दोनों चीज याद। ये ऑसम, वेरी एक्सेलेंट तो गलत हो गया, ऑसम। देखिए द क्लास वाज इनक्रेडिबल भी बोल सकते हैं, ये सब याद रखिएगा। जैसे किसी का फोटो ही है, Incredible. incredible, the class was incredible, the class was incredible, the class was awesome, the class was superb भी कर सकते हैं, superb, superb। सर Super. इनक्रेडिबल का बता दीजिए, सुपर। वही हुआ, वही बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत Excellent. okay। The class was fantastic, the class was Fantastic. wonderful, फैंटास्टिक। the class was marvelous, marvelous। Marvelous. तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस सारे वर्ड्स को ले लीजिए आप लोग। एक्चुअली देखिए, आज हम लोग जब क्लास को शुरू किए तो एक इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, इस पे हम लोगों का प्रैक्टिस हुआ, और अ पीस ऑफ केक पे हुआ, और क्या हुआ आज? ये सर हाँ, पर इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो पे हुआ है। Or do you know uh, where post office हाँ, is? वेयर द पोस्ट ऑफिस Where the post office is? इज। चलिए, कैन आई सर योर, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो पे भी हुआ है। हाँ हाँ वो तो हुआ ही है, वो भी बोले हैं, हुआ। चलिए अब जो है, सर वो आई कृति, आप अब कल के होमवर्क पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से, you have to tell 5 sentences, or if you add 10 sentences it's okay, what you have done yesterday. Well, the homework what I said to you to prepare, चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी कीजिए। Sir, I'm not prepared. You couldn't prepare yourself, Yes, sir. so But I forget. you forgot. Not I forget, I forgot. Why did Yes. you forget? Why did you forget? Because, sir, today is the interview. Oh, you are facing interview, okay। Yes. चलिए नेक्स्ट, आदिल, आदिल नॉट, व्हाट्स नेम, अली, अली। अली टेल। और इतना काहे चिल्ला के बात करती है रे? हाँ अली टेल। What, sir? द होमवर्क यस्टरडे आई हैव गिवन यू द होमवर्क। Yes, sir. पास्ट में I'm आपको watching कुछ video, sir. सेंटेंसेस बोलना है जो आपने किया है, कल जो काम किए हैं पास्ट में उसी को बोलिए। Yes, sir. अरे क्या हो रहा है भाई, बच्चे भाग रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाग रहे हैं।
इबरत, चलो शाह जफर। शाह जफर, कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं आप पास पे? बनाए तो नहीं सर, बनाना पड़ेगा। हमने उससे कहा था आप लोगों को थोड़ा बढ़िया प्रैक्टिस करके आने। चलो साइमा, चलो तुम ही बोलो। वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट था सर. I played Verb football. not Yes, it's sir. I. Sir, I want to correct the verb, not verb. ओके। Pronunciation is Verb. Yes. verb, more verb, Yes. verb. Actually, Verb. in British English, R is hidden. Always R is hidden. But in American Yes. English, R is pronounced. So here we speak both, so no problem. But verb is the right the right one because we generally follow British English. Chali chali chali. Yes. Verb. Indian people. Indian people. Saima. हाँ बोले सर. I played football yesterday. You studied English. You studied English grammar. He sang a song in the party. She made coffee in the morning. It rained in last week. बट यू मेड पास्ट सेंटेंस, सेंटेंस यू बनाए. मेड ठीक, अच्छा बना है सेंटेंस, लेकिन आपने अपनी जिंदगी से Yes, रिलेट sir. नहीं किया सेंटेंसेस को। Yes, मेरा sir. कहना था कि सेंटेंसेस सिर्फ बनाना नहीं था, सेंटेंसेस को अपनी जिंदगी से रिलेट करना था, वो सेंटेंसेस आपके लिए हो। चलिए, सर जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वोक अप एट at 6 woke up at o'clock. 6 o'clock. Today I And woke up at 6 o'clock. I brushed my teeth and I हाँ. went out. I saw it was raining, so I again slept, and then I again woke up as well as got up at 7 Yes, sir. o'clock. Then I took tea. I took my breakfast, and then I got ready. At तो at अब seven ये सब o'clock. हाँ, And इसमें हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं लाइफ से, ये होना था। चलिए साइक साइक Yes, sir. टेल फ्यू Sir, सेंटेंसेस। yeah. When I get up in the early morning, गॉट अप, नॉट गेट अप, गॉट अप। uh, got up in the early morning. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन I गेट अप एंड वेक अप? wake up and get up. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट अप एंड वेक अप? Wake up, Jagana, and get up. Also, Jagana. Difference between uh, I can't guess, sir. Difference between Does those words. anybody know in this class the difference between get up and wake up? जब हमारी आंख खुलती है तो वेकअप होता है, जब हम बिस्तर छोड़ देते हैं तो गेटअप होता है। जी, राइट, यू आर राइट। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, याद रखिएगा, Uh, वेकअप हमेशा पहले होता है, गेटअप just a हमेशा second. बाद में होता है। अब कोई नींद okay, sir. नहीं चल रहा हो तो अलग बात है, उसका हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे जो है ठीक है, ऐसे जो है Okay, sir. पहले पहले जो है वेकअप होगा और गेटअप, और ठंडा अगर हो, रजाई के अंदर हो, तो ऐसे गेटअप वेकअप में बहुत का फासला हो जाता है, Okay, आदमी sir. अपना अंदर पड़ा हुआ है बस। चलिए चल टेल 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 सायक। So yes, sir. When I got up in the early morning, so I offered salah. Okay. After that, I took rest for For some some time. time. Yes, sir. After that, I recorded a video for YouTube, poetic video. After that, I cooked my food, prepared food for me.
After that, I washed my clothes. Then I took bath. You took a bath. ओके, चलिए Yeah, बहुत अच्छा, I यही took हम my चाह bath. ही रहे थे, किसी तरह बोलना है, हर जगह सिंपल पास बोलना है। ओके अली, आई थिंक Yes, यू आर sir. रेडी, यू आर I रेडी। want to clear about poetic video. It's a good. It is a correct sentence. हाँ हाँ, पोएटिक वीडियो, इट्स गुड। Yes, sir. Okay. चलिए चलिए, अली 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 अली। हम्म I woke up in the morning. I want to. I I went to office, and I see all manpower in strike due to payment issue. You saw, I I called. saw, not I saw. You say you see, I saw. I saw a strike. Yes, yes. Hmm. I I saw on strike all manpower Okay, okay. And then due to payment issue. Um, I called my manager. Said that all manpower is strike today due to payment issue. My manager is my manager told me uh, uh, today is all balance amount is clear. so today all balance amount will be cleared. Will be clear. Yes, Okay, that's it. very good, very good. You have made a good try. चलिए मरगूब। Okay, sir. I got up early in the morning at 5 o'clock. I brushed my teeth. I made my breakfast, and after that, I took my breakfast and then got ready to go to home. To go home. At To go to go home. No, home. To go to Not home. go to go home. to Yes. home. To go home. To go home. At 11 a.m., I reached my home, Okay. and now I'm in my home because today is holiday. You know. Yeah, I know. चलिए बहुत अच्छा, मतलब आई what I expected, mashallah, you have done. You all have played very nice role today. अब जो है, जो वीडियो आपको भेजा था, आपने सब ने सुना है उसको? कौन कौन सुना है? पहले अपना Yeah. हाथ उठाइए क्लास में कि वाकई हमने बजाया है, सुना है। ओके, मरगूब साहब सुने, हाथ उठाए हैं। साइमा सुनी है, और अली भी सुने हैं। चलिए, साइमा ये सब, और ये साइक साहब नहीं सुन सके। Little bit. Little bit. I think that video was very nice to learn English, and the Yes. accent is also very good. So you must watch that video. Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं। तो अब क्या है, उसको लिखा है क्या आप लोगों ने? मरगूब, हैव यू रिटन द कॉन्वर्सेशन? Yes, sir. कैन यू रीड? Okay. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Fine. Thank you. Come from You come from England. Do you like Manchester United? I do not like I don't football. like football. I do not like football. Oh, you do not like football. I see. I see. Why did you? I see. I Why see. did you come here? Why did you come here? I Why came did you for come here? vacation. Uh, I came for vacation. You came for vacation. Are you having fun? Are you having fun? are you having a fun? Are Yes, you having a fun? Yeah, we I'm are having. having a great fun. Are you I'm having having a great fun. great fun? Okay, that's all I have बहुत written. अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल सही आपने उतारा, बिल्कुल सही समझा। यू हैव गॉट राइट, रियली वेरी नाइस वर्क यू हैव डन। चलिए साइमा भी देखें क्या लिखी है। Okay. I read, sir. Hello.
I am fine, thank you. Where are you from? I come from England. Do you like Manchester United? I don't like football. Why did you come here? I came from vacation. What do you like the best about here? Do you like the food? Uh, uh, how much longer will you stay here? I will stay 2 more days. Where did you work? I work. I work from a company. I work for a company, not from a company. Yes, sir. I I work. work for a company. For a company. Uh, so चलिए, that's बहुत it, sir. बहुत अच्छा, वेरी गुड। अली, आप भी कुछ काम किए हैं क्या इस पे? No, sir. चलिए, कोई बात नहीं, ये अच्छा है। अभी और भी कुछ टुकड़ा उसका बचा होगा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह कल दूसरा वीडियो या उसी वीडियो का हम कंप्लीट जो दूसरा पार्ट है कि डू यू रिमेम्बर मी, वो एक दूसरा है। ये पहला तो था कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, दूसरा है डू यू रिमेम्बर मी। जैसे किसी Yeah, दोस्त yeah, से बहुत दिन बाद बात होती है तो कहते हैं ना yeah, कि yeah. वो हमको याद है, तो उसी पे एक कॉन्वर्सेशन है, बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली देखिए, जो भी जुड़ते हैं वो ये कभी मत सोचें कि हम मेरे पास कोई जादुई छड़ी है। आई डोंट हैव एनी मैजिकल वॉन्ड विद दैट आई विल मेक यू फ्लुएंट इन फ्यू डेज। तो कुछ दिनों में आपको मैं इंग्लिश में बिल्कुल माहिर बना दूंगा, ऐसी कोई छड़ी मेरे पास नहीं। ठीक है, तो अब ये है Sir, कि रोज आते हैं आप लोग, तो रोज प्रैक्टिस इसमें करना होगा और खूब करना होगा। ठीक है, तब जाके आपकी इंग्लिश जो है वो इंग्लिश जो अब जो इंग्लिश आपकी बनेगी, जो लोग इस क्लास में हैं, वो नेचुरल इंग्लिश बनेगी। वो रट्टू तोता वाली इंग्लिश नहीं होगी। जितना मन होगा आप अपने मन से, जैसे आज अली को देखे, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी रहा लेकिन फ्लुएंट था, जो बोलना था बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा। तो ये चीज ठीक लगे कम से कम, आज दूसरा ही क्लास है इसका, और ये अच्छी चीज है। तो इसी तरह से, और मेरा ख्याल है इधर साइमा भी या और भी बच्चे सब फ्लुएंट हो रहे हैं, शाह जफर भी, सब लोग। तो मेनली ये है कि एक कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई टाइम का कोर्स नहीं है कि ऐसा कर दें। एक्चुअल इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस, और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी फ्लुएंट। और more learn. हाँ, तो इसलिए जो है रोज जुड़िए। ठीक है, और कुछ कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो। हाँ, शुरू में और कुछ वर्ड्स भी दिया था हमने, डुएबल और वो टेंजिबल और एडिबल, विजिबल, पोर्टेबल, ये सब वर्ड भी दिया था। यस सर, आज उसका स्क्रीनशॉट आज ले वाला लिए हैं। क्लास और कल वाली क्लास